Say again. Some are waiting. Okay. So let us start from here. Class 10th. Classification of existing plants and animals according to International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. What is this? International Union for Conservation of Nature and Natural Resource. What is the abbreviation? What is the short form? IUCN. IUCN. Okay. So according to IUCN, the first category is normal species. As the name suggests, that it is normal. That means there is no chance of lowering down of its population. It is sufficient in nature. Species whose population level are considered to be normal for their survival, such as cattle, sal, pine, rodents. Cattle means what? Cow, buffalo. Cow and buffaloes. Cow or buffalo. So these type of animals are sufficient in number. Their number is quite normal. Population is sufficient. There is no chances of their decrease in population. And then in the same way, sal, pine. These are the trees. Name of the trees. So these are very few examples. There are several other examples also of normal species. And then rodents. Rodents means like squirrels, rats, mice. Squirrels, rats. All these are known as rodents. So these type of animals and plants are in normal species. You can give other examples also here, like mango tree, peepal tree, banyan tree. All these are also coming under normal species. Yes, ma'am. So they are normal. The species whose population level are considered to be normal for their survival. है ना, उनके survival का कोई ये नहीं है, खतरा नहीं है, danger नहीं. अब दूसरे में आ जाओ, अब यहाँ से शुरू हो रहा है. हाँ, बोलो. बेकन को बेकन क्यों कहते हैं कुकी? हाँ बताओ. मैम पीरियोडिक टेस्ट का डेट कब तक आ जाएगा? आ जाएगा अभी देखो ना. मैम आप लोग कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन है? हाँ, पीरियोडिक टेस्ट का नाम मतलब मैम अराउंड मैम किस मंथ में हो सकता है? एक पीरियोडिक टेस्ट वैसे समर ब्रेक के पहले होता है. देखें, अभी तक हम लोग के पास कोई नोटिस नहीं आया है, इसलिए तो कुछ बता नहीं सकते. ओके मैम. Endangered species. These are species which are in danger of extinction. The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continue to operate. So what is the situation? If the negative factors prevails, what are these negative factors? Negative factors are cyclone, or deforestation, hunting, environmental ecological imbalance, ecological pollution, like pollution of the environment, soil erosion, global warming, and all these are known as negative factors. Hunting, depletion of glaciers. Yes, human interference. All these are the human factors. Large cutting of trees. That is known as deforestation. So if the negative factors continues to operate, then the normal species may go to the endangered category. Endangered category means their population decreases and they may go to the situation in which their population is under threat. So endangered species are black buck. Black buck is a variety of deer. Crocodile, Indian wild ass, rhino, Indian rhino, lion-tailed macaque. Lion-tailed macaque is a variety of monkey whose tail is like lion. Sangai. Sangai is a variety of deer.
in Manipur. Okay, so these are the some of the examples, which are the examples of endangered species. This answer. What are Ma'am, endangered? endangered species. Huh? Ma'am, endangered species are the species which are facing the danger of extinction due to very high level of problems such as deforestation, human interference, depletion of glaciers. Hmm. And what are the examples? And ma'am, examples of Black buck, endangered crocodile, species, Indian wild ass, ma'am, Indian rhino, Indian rhino, lion-tailed lion-tailed, tangle. ma'am, Lion. हाँ ये मैकाक समझ गए ना. मैकाक is a variety of monkey. Monkey. Come to the next, vulnerable. These are species whose population has declined to level from where it is likely to move into the endangered category. That means after normal, you can say the next is vulnerable. And after vulnerable, the next is endangered. समझ गए ना? Yes, ma'am. से पहले तो नॉर्मल स्पीसीज है जिसके पॉपुलेशन के घटने की कोई चांस नहीं है, काफी सफिशिएंट है, किसी डेंजर में नहीं है. ठीक है. उसके बाद आता है वल्नरेबल. ये सेकंड में मान सकते हो तुम. These are species whose population has declined to a level. इनका पॉपुलेशन कुछ घट गया है और इनका पॉपुलेशन अगर और घटा तो ये किस कैटेगरी में चले जाएंगे? एंडेंजर्ड में चले जाएंगे. इन नियर फ्यूचर if the negative factors continue to operate. वही बात है कि negative factors अगर रहता चला गया तो ये vulnerable category, normal से किस में आ जाएंगे species? Vulnerable में आ जाएंगे. Vulnerable species. और vulnerable से अगर और बुरी condition हुई तो किस में जाएंगे? Endangered में जाएंगे. Endangered species. lion or ma'am, and Asiatic elephant, Gangetic dolphin. Gangetic dolphin. Gangetic dolphin. तो ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, इन सब का पिक्चर भी तुम देखे ही होगे. गैंजेटिक डॉल्फिन तो सब लोग देखे हैं. कुछ पिक्चर हम भी दिखाएंगे तुम्हें. तो ये हो गया वल्नरेबल. मतलब अगर नॉर्मल से पॉपुलेशन कम हो जाता है तो वो स्पीसीज वल्नरेबल में आएंगे और वल्नरेबल से और भी घटा तो वो एंडेंजर्ड हो गया. अब एक अलग तरह का स्पीसी है जिसको हम कहते हैं रेयर स्पीसीज. मैम, रेयर. हाँ, Very small in number. हाँ, वेरी स्मॉल. Yes, ma'am. Dear. पहले से ही कम है ना. Species with a small population Yes, may ma'am. move to the Ma'am, endangered woodpecker. category if negative factors affecting them continue to operate. नाम से ही क्लियर है कि ये इंडिया में पहले से ही बहुत रेयर हैं, किसी खास एरिया में ही रहते हैं. तो इनका पॉपुलेशन कम होगा ही. हाँ देखो फिर आया है इसी नाम से, कोई उल्टा पुल्टा नाम से आया है. यस मैम. अब एडमिट मत कीजिए मैम, फिर से स्टार्ट हाँ. कर देगा वो. हाँ, इसमें देखो एग्जांपल में क्या क्या लिखा हुआ है. हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक मैम, बफेलो. एशियाटिक बफेलो, मैम, डेजर्ट फॉक्स और हॉर्न. हॉर्नबिल जो है ना, ये भी एक बर्ड है. हॉर्नबिल यस मैम. देख लें इसके किस नाम से एंटर किया है जरा. ब्लू अगर कोई जेन्युइन होगा तो तुम लोग बताना, तो हम एडमिट करेंगे. तो ये रेयर स्पीसीज हो गया. जैसे तुमको ना हिमालयन रीजन में रेड पांडा भी है इंडिया में. रेड पांडा वो भी तो रेयर स्पीसी में ही आएगा. अब आ जाओ नेक्स्ट, एंडेमिक. एंडेमिक स्पीसीज, दीज आर स्पीसीज which are Falling in some particular areas. हाँ, इसको रीडिंग करो तो उत्कर्ष अच्छे से. These are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers. Examples of such
species are the Andaman teal, Nicobar pigeon, Andaman wild pig, मिथान in अरुणाचल प्रदेश। मैम मेनली आइलैंड्स का है। अच्छा, मैम इंडेमिक स्पीशीज में मैम एक मैम जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आ गया मैम वो था डोडो बर्ड मैम, उन लोग के लिए डोडो आइलैंड था मैम, साउथ अफ्रीका के पास। अच्छा, तो वो एंडेमिक में आ गया। मैम वो एक्सटिंक्ट हो गया मैम, extinct वो हो गया मैम। स्पीशीज मैम एक्सटिंक्ट हो, पहले मैम वो इंडेमिक में आता था हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैम वो लोग उस आइलैंड को छोड़ के उन लोग का कोई भी स्पीशीज कहीं भी पाया नहीं जाता था। हाँ हाँ, है ना, तो मैम नेम, वो स्पीशीज मैम जो मैम अर्थ से मैम एक्सटिंक्ट हो चुका है, जो कहीं पे भी अब हाँ, बचा नहीं। इसका नेम ही क्लियर है, नेम से ही क्लियर है कि एक्सटिंक्ट है, मतलब वो हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। Not found on any हाँ, area of the earth. हाँ, ये भी हो सकता है किसी एक एरिया से, किसी एक रीजन से They have perished from the surface of। जैसे ये देखो एशियाटिक चीता जो है ना, वो एशिया से एक्सटिंक्ट हुआ है, लेकिन दूसरे Yes मैम। है ना, अफ्रीका में है, तो किसी रीजन से भी एक्सटिंक्ट होता है, पूरे वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट होना कोई जरूरी नहीं है। These are species। यस मैम, जैसे मैम एशियाटिक लॉयन मैम पूरे दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन मैम सिर्फ एशिया में है। हाँ, and after searches of known are likely areas where they may occur. These are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. The species may be extinct from a local area, region, country, continent or the entire earth. ठीक है ना, लोकल एरिया से भी एक्सटिंक्ट हो सकता है, किसी बड़े रीजन से भी, या कंट्री या कॉन्टिनेंट से, या पूरे अर्थ से। Example of such species are Asiatic cheetah, pink-head duck. ठीक है ना, कुछ बर्ड्स के तुम लोग ये देख लो पिक्चर, जैसे कि आप देखिए इसका माउंटेन क्वेल है ये, है ना, दिख रहा है? नहीं, शेयर नहीं हुआ। No मैम। Yes, ma'am. नो मैम शेयर नहीं हुआ। हाँ, नहीं नहीं, शेयर नहीं हुआ, रुक जाओ, शेयर। एक आया था ना माउंटेन क्वेल, अभी शेयर हो रहा है, दिख रहा है Yes ना? मैम। हाँ, यस मैम, यस मैम। तो एक ये हो गया। अब इसके बाद देखो एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एक्सटिंक्ट, ये देखो, ये माउंटेन क्वेल है, और वो क्या था, अंडमान टील था वो। ओके मैम। दिस इज माउंटेन क्वेल, है ना, ये नाम आया है ना तुम्हारे बुक में, ये माउंटेन क्वेल। यस मैम। और इसके पहले जो तुम देखे थे उसको फिर से एक बार देखो। मैम अंडमान। हाँ, दिस इज अंडमान Endemic टील, species. अंडमान टील, है ना, किस कैटेगरी में आता है बताओ? Endemic species. हाँ, मैम एंडेमिक में। ओके। और उसी तरह से एक और भी देख सकते हो तुम, वो हिमालयन एनिमल्स में, हिमालयन एनिमल्स में इसका देखो पिक्चर, रेड पांडा, दिस इज रेड पांडा, यस। ठीक है ना, दिख रहा है सबको? Yes मैम। हाँ, ये बहुत शाई एनिमल होता है, ये ना बहुत कम नंबर में भी है, रेयर स्पीसीज में आता है, हिमालयन एनिमल के अंदर आता है, और ये बहुत छिपके रहते हैं, ह्यूमन बींग्स के सामने जल्दी नहीं आते हैं। मैम इंडिया में फाउंड होते हैं कि नहीं? हाँ, इंडिया में है, तुमको हाँ, हिमालयन रीजन। सिक्किम में देखने को मिलेगा, सिक्किम में, सिक्किम के जू में भी इसको रखा गया है, बहुत अच्छे से, मतलब एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट का एरिया करके सेपरेट करके उसी में रखा गया है, वहीं लोग देखने जाते हैं।
एशियाटिक चीता से देखोगे यहाँ से, है ना, और भी इसके पहले कुछ है। अच्छा कुछ पिक्चर्स हैं, बस पिक्चर्स देख लो। ये सब पढ़ के देख लेना क्या क्या नाम लिखा हुआ है। A few extinct, rare and endangered species. Asiatic cheetah. Where did they go? The world's fastest land mammal, the cheetah, is a unique and specialized member of the cat family. है ना, कैट फैमिली में सब आते हैं, लेपर्ड, चीता, फिर टाइगर, ये सब कैट फैमिली में आते हैं। मैम पैंथर, हाँ पैंथर्स, ये सब के सब कैट फैमिली में। एंड कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, इसका स्पीड इतना है 112 किलोमीटर पर आवर। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर लेपर्ड। इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क आर लॉन्ग टीयर ड्रॉप shaped lines on each side of the nose from the corner of its eyes to its mouth. ठीक है, आईज से लेके माउथ तक एक ब्लैक लाइन रहता है। टीयर ड्रॉप वो चीता का होता है। ठीक है ना, यही इसका पहचान है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, लेपर्ड से इसको कंफ्यूज करते हैं। Prior to the 20th century, cheetahs were widely distributed throughout Africa and Asia. ठीक है ना, 20th सेंचुरी के पहले चीता बहुत ज्यादा नंबर में थे, एशिया में भी और अफ्रीका में भी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, टुडे द एशियन चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू अ डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। एशियन चीता बिल्कुल खत्म हो गए हैं। इसका एक और भी स्टोरी तुम जान सकते हो एशियन चीता का, कि क्या करते थे कि इंडिया में खास करके लोग जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे ना, वो लोग इसको टेमिंग करते थे, वो लोग इसको पालते थे, टेम करते, है ना। तो किस लिए रखते थे, वो उनका शान होता था कि अपने अपने रजवाड़े में 10-10, 20-20 चीता को कैप्टिव बना करके रखते थे, पाल के रखते थे, और उससे हंटिंग का भी काम लेते थे। हंटिंग करने के समय उसको मैम रशिया में भी मैम बैक इन 1850 में मैम सब मैम वायर वुल्फ्स को रखता था मैम। वो लोग मैम बहुत खतरनाक स्पीशीज ऑफ वुल्फ्स होता था। हाँ नियरली मैम वो लोग मैम टाइगर जितना मैम ताकत रखता था मैम, एक बार में एक आदमी को आराम से खत्म कर सकता था। हाँ तो मैम वहाँ का भी मैम जितना भी बड़ा लोग रहता था मैम सब वो लोग रखता था। हाँ ऐसे ही जितने मैम भी उसी के स्पीशीज से हस्कीज आया है। प्रिंसली स्टेट्स में रखते ना, ये कैप्टिविटी में रहते इनका रिप्रोडक्शन भी कम हो गया इस एनिमल का, और ऐसे करते करते इंडिया में 1952 में ये तो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, 1952 से एक्सटिंक्ट है। What are the negative factors that cause such fearful depletion of flora and fauna? अब यहाँ से ना एक क्वेश्चन तुम ये लिख लो, What are the negative factors that cause fearful depletion of flora and fauna? फ्लोरा एंड फाउना के डिप्लीशन के क्या क्या रीजंस हैं? What are the negative factors that cause fearful depletion of flora and fauna? डिप्लीशन मतलब समाप्त होना। फ्लोरा एंड फाउना के खत्म होने के पीछे क्या क्या रीजन है? धीरे धीरे जो ये हो रहा है, कम हो रहा है। देखो यहाँ से ना हम लोग उसको ये करके लिखेंगे। टाइम कितना बचा है? 6 मिनट्स। तो हम लोग इस आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। यस मैम। रिपीट द क्वेश्चन। मैम व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर दैट कॉज सच fearful depletion of flora and fauna? हाँ, तो यहाँ ना ऐसे पैराग्राफ में लिखा है, इसको हम लोग पॉइंट्स में अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, if you look around you will be able to find out how we have transformed nature into a resource obtaining directly or indirectly from the forest and wildlife. We have treated forest as obtaining a resource only, like wood,
barks, leaves, rubber, medicine, dye, food, fuel, fodder, manure, etc. है ना, बहुत सारी चीजें हम फॉरेस्ट से लेते हैं। तो ये इसके वजह से क्या हुआ, एक्सेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट या डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। ये पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, डिफॉरेस्टेशन। बेटर टू राइट फर्स्ट पॉइंट एज डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, क्योंकि वी आर यूजिंग excess of the forest resources. So the first point which you will write is deforestation, and deforestation is due to lumbering and gathering of variety of forest items, or you can say excess exploitation of forest resource. Another point, the impact of colonial period. ठीक है ना, पहला पॉइंट तुम क्या लिखे, डिफॉरेस्टेशन। आप क्या लिख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। तो कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स किस तरह से फॉरेस्ट को हार्म किए थे वो एक साथ लिख सकते हो तुम। तो उन लोगों ने क्या किया था कि डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, ये सबको बहुत इंक्रीज कर दिया था यहाँ पे, जिससे फॉरेस्ट को लॉस हुआ था। ठीक है ना, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि इंडिपेंडेंस के बाद भी जो अगला रीजन है फॉरेस्ट के डिप्लीशन का, वो क्या है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसमें तुम्हें एक्सप्लेनेशन में ये लिख सकते हो कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वेरी लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, we require lot of food and therefore there is agricultural expansion by cutting the forest. तो एक ये पॉइंट हो गया एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, है ना। तो अभी तक कितने पॉइंट लिखे बताओ मैम? 3। हाँ, फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। हाँ फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट था मैम डिफॉरेस्टेशन। Deforestation. मैम रीजन मैम एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट मैम ड्यू टू फॉर मैम एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेस्ट फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज लाइक मैम वुड, फॉर फ्रूट्स मैम, लैंड्स। Expansion of railways, agriculture, commercial and scientific, forestry and mining activities. These were started during the colonial period by the Britishers. तो ब्रिटिश टाइम में भी फॉरेस्ट को लॉस हुआ। अब इसके बाद भी इंडिपेंडेंट इंडिया में भी क्या है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो ये भी एक रीजन हो गया। अब यहाँ देखो, बिटवीन 51 and 80 अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन का ये एग्जांपल हो गया कि कितना लैंड, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, अब अगला देखो, in the tribal belt, especially in the northeastern and central Asia, have been deforested or degraded by shifting cultivation. ठीक है, तो एक अलग अगला रीजन लिख सकते हो, अगला कॉज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर which is practiced by the tribal people, especially in northeastern states of India. तो एक रीजन क्या लिख दिया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको हम इंडिया में क्या कहते हैं, झूमिंग भी कहते हैं, झूम। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन बाय अदर नेम आल्सो, इट इज झूमिंग। मैम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। हाँ, वेरी गुड। तो देखो, तुम बहुत सारे पॉइंट, इस आंसर को ना अपने से लिखा जा सकता है। यस मैम, जा सकता है ना, ये वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अभी ब्रिटिश पीरियड का तो एक पॉइंट हो गया, कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पीरियड, लेकिन बाकी सारे रीजन मैम ये पूरा चैप्टर ही मैम डाटा बेस्ड है, इसको मैम पूरा ही मैम अब अपने से हम लोग को पढ़ के मैम लिखे आंसर सारा लिखना पड़ेगा मैम। आप तो मैम एक्सप्लेन ही ना कर सकती हैं। हाँ, और जानते हो ये लेसन ऐसा है ना कि इसको तुम खुद से लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि हमारे समझ के बाहर, इसको बिल्कुल अपने से लिख सकते हैं। अब इस पैराग्राफ को थोड़ा समझो कि some of our are the colonial policies to be, so environmentalists say that the promotion of a few favored species in many parts of India has been carried through
the ironically termed enrichment plantation, in which a single commercially valuable species are extensively planted and other species are eliminated. Eliminated मतलब समाप्त कर देना. तो इसको कहते हैं enrichment plantation. इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें रबर ट्री की जरूरत है, तो बाकी सारे फॉरेस्ट को क्लीन करके और सिर्फ रबर का प्लांटेशन कर दिया. इसी को कहते हैं enrichment plantation.